کہ پھر یہ اسرائیل کی سازش نہیں ہے، یہ پھر آسٹریلیا کی سازش ہے؟ بس پوچھتی ہوں آج گھرانے تو پوچھتی ہوں. جہاں تک سائڈ افیکٹس سے تعلق ہے تو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے سائڈ افیکٹس نہیں ہیں. یہ ایک سازش ہے یا ایک یعنی ایک غلط طریقے سے بچیوں کو بانجھ کرنے کے لیے یعنی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. دنیا ہماری سائڈ پہ نہیں ہے، ہم دشمن ہیں، ہم ادر ہیں. اور یہ آئی تھنک وہ ویلڈ ہے، وہ فیلنگ ویلڈ ہے. مطلب یہ ہم اپنے آپ میں کس زوم میں ہم پاکستانی یعنی ہمارے پاس ایسی کیا ٹیکنالوجیز ہیں یا ہم نے کیا کوئی ترقی کر لی ہے کہ ویسٹ ہمارے پیچھے پڑ گیا. ایک بندے کو چیک کرو اور ان کے جو ہے وہ ٹریسز رکھو کہ یہ کیا کریں، کیا سوچتے ہیں. حد ہو گئی ہے. سب دیکھنے اور سننے والوں کو آداب. آج ہم دالان میں حاضر ہوئے ہیں ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ہمارا یوزول ریکارڈنگ سلاٹ نہیں تھا آج، لیکن ہم نے سمجھا کہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اہم موضوع ہے جس پہ بات کرنی ضروری ہے. بہت بات ہو رہی ہے اس میں، کچھ لوگ اچھی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں. تو موضوع ایسا ہے کہ جو آج کی ضرورت ہے، اور شمع بینگ ڈاکٹر ہمیں ہیلپ کریں گی اس موضوع کو سمجھنے کے لیے. میں شمع کو پہلے ویلکم کروں گی دالان میں ایز یوزول. شمع گڈ مارننگ، کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. تمہیں آج اپنی جو ہماری یوزول سلاٹ ہے اس سے ہٹ کے میں نے شمع کو فون کیا آج صبح. میں نے کہا کہ آج تیار رہنا دالان میں بیٹھک کے لیے، ایک اہم موضوع ہے جس پہ چونکہ یہ ڈاکٹر ہے تو اس سے یعنی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ایک خاص موضوع پہ بات کرنی ہے. وہ خاص موضوع ہے جو آج کل پاکستان میں ایک بحث چڑھی ہوئی ہے HPV ویکسینیشن کی، جو کہ گورنمنٹ نے ایک کیمپین سٹارٹ کی ہے. تو اس کے بارے میں چونکہ بہت بات ہو رہی ہے، بہت لوگ اچھی بات بھی کر رہے ہیں اور بہت لوگ غلط فہمیاں بھی پھیلا رہے ہیں. تو آج ہم بیٹھ کے تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہیں، کتنی غلط فہمیاں ہیں، یہ ویکسین کس حد تک مفید ہے بھی یا نہیں. بات شروع کرنے سے پہلے شمع میں تھوڑا سا تمہیں بیک گراؤنڈ دے دوں جو پاکستان کے حوالے سے کہ ابھی جو تھوڑا بہت میں نے بھی پڑھا ہے، اور سارا تم تو ڈاکٹر ہو، تم تو جانتی بھی ہوگی. پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو سرویکل کینسر از بیکمنگ اے بگ تھریٹ دیر. بلکہ میں پڑھ رہی تھی کہ یہ تھرڈ موسٹ کامن کینسر جو ہے وہ خواتین میں پاکستان میں از ایمرجنگ ایز لائک تھرڈ کامن کینسر، جس میں ہر سال تقریباً 5,000 خواتین اس کا شکار ہوتی ہیں، اور ان 5,000 خواتین میں سے رفلی 3,000 خواتین ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں. یہ اس حد تک یعنی مطلب بری طرح وہ متاثر خواتین کو یعنی ان کی صحت کو وہ کر رہا ہے. جو خواتین ایجڈ 15 to 44 ان میں یہ دوسرا کامن کینسر سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 69 ملین خواتین جو ہیں جو 15 پلس جن کی ایج ہے پاکستان میں دے آر ایٹ رسک. تو اس اتنے بڑے خطرے کو کمبیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک ویکسینیشن کی ایک کیمپین جو ہے وہ رول آؤٹ کی ہے. چونکہ سرویکل کینسر کی ہم بات کریں تو سرویکل کینسر کا جو موسٹ کامن ایک فیکٹر ہے وہ ذرا تم ایز اے ڈاکٹر کنفرم بھی کرو گی، وہ HPV ہے، جو یہ وائرس ہے. اس کی یہ مین فیکٹر ہی ہے، اوبویسلی اس کے اور بھی فیکٹرز ہوں گے. تو اس کے لیے جو ہے ویکسینیشن یہ ضروری ہے. اس ویکسینیشن کے لیے گورنمنٹ نے خود بھی کافی سارے فنڈس جو ہیں وہ مختص کیے ہیں، اور پھر یونیسیف اور WHO کی ہیلپ سے جو ہے انجیکشنز اور باقی جو چیزیں جو چاہیے ان کی فراہمی وہ کی جا رہی ہے. 49,000 ہیلتھ ریلیٹڈ اسٹاف ہے، اس کو ٹرین کیا گیا ہے اس کے لیے. یہ ایک قدم جو حکومتی سطح پہ اٹھایا گیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں، دیکھیں اگر یہ اتنا بڑا خطرہ ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور اس کا ساتھ دیا جانا چاہیے. لیکن ہمیشہ کی طرح ہمارے ہاں اس کا الٹ رسپانس دیکھنے کو مل رہا ہے. لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں اور لوگ وارن کر رہے ہیں کہ بھی اس کو ختم کیا جائے اور بچیوں کو بالکل بھی یہ ویکسینیشن نہ کروائی جائے. یہ ویکسینیشن بائی دا وے
बच्चियों को एज 9 to 14 जो है वो वैक्सीनेट किया जा रहा है, मेनली इन पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में। और इसमें जो है वो लोग कह रहे हैं कि अपनी बच्चियों को मत लगवाएं, ये कोई साजिश है, कोई प्रोपेगेंडा है। तो शम्मा, यू बीइंग डॉक्टर, सबसे पहले तुम्हें ये बताओ कि ये क्या है, HPV क्या है, और ये वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या हमारे यानी तिब्बी हवाले से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या अहमियत है? हाँ, वैसे जब तुमने मुझसे कहा तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि वैक्सीन्स मेरा एक पसंदीदा टॉपिक है। और मैं अक्सर मजाक में कहती हूँ कि अगर वैक्सीन्स ना होती, क्योंकि अक्सर मैं जब लोगों को बताती हूँ कि हम लोग 9 बहन भाई हैं, तो कहते हैं वाह, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिलीज आजकल नहीं होती। तो मैं कहती हूँ ये थैंक्स टू वैक्सीन्स। वाकई कि अगर वैक्सीन्स ना होती तो हम 9 ना होते, हम 6 होते या 3 होते। और इसमें मैं ये बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रही। जब वैक्सीन्स नहीं आई थी उस वक्त जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट था वो 3 में से 1 बच्चा 5 साल की उम्र तक नहीं पहुंचता था। तो हम यानी शुक्रगुजार हूँ मैं अपने वालिदैन की जिन्होंने हम सबको वैक्सीन्स करवाई। तो ये तो थोड़ा सा वैक्सीन्स का जिक्र है। लेकिन जहाँ तक HPV वैक्सीन का ताल्लुक है तो उसमें भी एक तो काबिल फख्र बात ये कि जिधर हम रहते हैं क्वींसलैंड में, ये इधर ही डेवलप हुई थी ये वैक्सीन। तो ये हमारे लिए एक फख्र का जरिया है। जिस मेरे मियाँ ने जिस यूनिवर्सिटी से, वो डॉक्टर हैं, जिस यूनिवर्सिटी में से उन्होंने ग्रेजुएट किया, उस यूनिवर्सिटी में ये बनी। साथ साथ उसकी पैरेलल डेवलपमेंट अमेरिका में भी हुई थी। तो ये वैक्सीन अच्छा, क्या चलो है? फिर मजाक की बात ये कि फिर ये इसराइल की साजिश नहीं है, ये फिर ऑस्ट्रेलिया की साजिश है। बस पूछती हूँ आज घराने तो पूछती हूँ। तो या इसराइल की साजिश क्या होनी है, बल्कि जिस बंदे ने जो लिंक दरियाफ्त किया था कि जो वायरस HPV वायरस और कैंसर के दरमियान जो लिंक दरियाफ्त करने वाला बंदा था वो जर्मनी से था। तो जर्मनी को इसराइल का तकरीबन मुतसादम समझा जाता है उसे, बल्कि फिर इसमें अगेन सॉरी, इट्स वेरी सीरियस टॉपिक, लेकिन मुझे ये याद आ रहा है कि कोई भी जैसे कोई कॉमन मैन पाकिस्तान में मतलब देहाती हो ना, तो कोई भी बात हो उसमें कहते हैं सारियां घुमता डाल गई ने, इसका मतलब है कि सारियां घुमता डाली। इसीलिए तो ये जो वैक्सीन वाला मौजू है, इसीलिए मुझे पसंद इतना है कि इसमें वैक्सीन से जितनी जानें बची हैं और इसमें सारी ह्यूमैनिटी इकट्ठी हुई है, तो इसलिए मुझे यानी हमें सबको खुद पे फख्र होना चाहिए। और कोई ये नहीं कि ये सब वेस्ट से आई हैं, ये भी वो लोग जो हिस्ट्री को जानते नहीं है वो समझते हैं। जो सबसे पहले अपने आप को इन्फेक्ट करने का और ये जो लोगों ने रियलाइज किया था कि इससे इम्यूनिटी हो सकती है, ये मिडल ईस्ट में और इंडिया में और चाइना में ये कॉन्सेप्ट सारे उधर से निकले हैं। तो ये हम पूरी दुनिया इकट्ठे का नॉलेज मिला है तो हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ये सिर्फ हाँ, इसका तमगा सिर्फ वेस्ट को नहीं दिया जा सकता। हाँ, लेकिन जो HPV है वो यूनिक इसलिए कि अक्सर क्या होता है कि कोई भी वैक्सीन है उसका काम करने का तरीका क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो कि बहुत उम्दा एक मशीन है जो किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी इसके ऊपर दे तो वो मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर उस फर्ज को उसको एक पुलिसमैन से तशबीह दें तो उस बेचारे को एक बंदा दें तो तब तो वो मुकाबला कर सकता है, अगर उसे फौज दें तो फिर वो मुकाबला नहीं कर सकता। तो वैक्सीन क्या है कि आप उसको यानी इस मकदार में वो वायरस या बैक्टीरिया दो जिसका वो मुकाबला करने के काबिल हो, और एक दफा वो मुकाबला कर लेता है तो फिर उसे समझ आ जाती है कि मुझे क्या चाहिए, और फिर अगली दफा जब भी वो वायरस या बैक्टीरिया आएगा तो उसके लिए बहुत आसान होता है उससे मुकाबला करना। तो इस कॉन्सेप्ट से वैक्सीन तैयार हुई थी कि इंसानों को शुरू में लाइव वैक्सीन देती थी, अभी भी कुछ लाइव वैक्सीन है जिसमें असल वायरस या असल बैक्टीरिया देते हैं आपको ताकि वो थोड़ी सी इलनेस पैदा करता है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। लेकिन जो HPV वैक्सीन है डेवलप हो जाएगी, हाँ, उसमें तो वायरस है ही नहीं, उसमें वो कहते हैं वायरस लाइक पार्टिकल्स। तो उन्होंने देख लिया कि
बिल्कुल वायरस की तरह का वो पार्टिकल है, लेकिन वो वायरस नहीं है, लेकिन वो उसी तरह का इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है जिस तरह की वो वायरस। तो यानी कि इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, कि आपको कोई यानी इन्फेक्टिव पार्टिकल भी आपके अंदर नहीं जा रहा, और आपका इम्यून सिस्टम भी पूरी तरह से ट्रेन हो रहा है उस वायरस के लिए, कि जब आप इनकाउंटर करें तो आपका इम्यून सिस्टम उसके लिए तैयार है। और ये यानी मजे की बात ये कि दुनिया की सबसे सेफ वैक्सीन्स में से एक है। यानी उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो वही हैं, अगर मैं एक कीकर का कांटा उठा के तुम्हें चुभो दूं बाजू में, तो जो उसके तुम्हें साइड इफेक्ट्स होंगे ना, बिल्कुल वही साइड इफेक्ट्स उस वैक्सीन के हैं। इट्स रिलेटेड टू, जब भी यानी स्किन पंक्चर होती है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट है, दर्द हो सकता है, जरा उधर छोटा सा जहाँ भी स्किन खुलती है वहां से बैक्टीरिया अंदर जाने के चांसेस हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, लेकिन वो चांसेस उतने ही हैं जितने के वो किसी और चीज से आपको वो स्किन प्रिक होता तो उसे। जहाँ तक कि कोई यानी वैक्सीन रिलेटेड चीज, असल जो वैक्सीन के अंदर चीज है वो नापैद है वो साइड इफेक्ट्स, यानी कोई अभी तक जितनी, और ये नई वैक्सीन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में गुजारे नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, इन सारे मुल्कों में तो काफी अरसे से चल रही है, तो उसमें यानी काफी तहकीक हो चुकी है, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा जा चुका है, तो दुनिया की महफूज तरीन वैक्सीन में से एक है। मतलब इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर हैं, या कोई माइनर से रिपोर्ट में है क्या? आई थिंक माइनर में क्या आते हैं, कौन से साइड इफेक्ट्स हैं? माइनर का मतलब स्किन इरिटेशन, स्किन यानी जहाँ पे आपको लगी है स्किन इरिटेशन, रेडनेस, चांस ऑफ इन्फेक्शन, लेकिन चांस ऑफ इन्फेक्शन वही मैं कह रही हूँ उतना ही, वो नीडल रिलेटेड चांस ऑफ इन्फेक्शन है, वो वैक्सीन रिलेटेड चांस ऑफ इन्फेक्शन नहीं है, कि अगर मैं यानी एक वैसे नीडल उठा के तुम्हें चुभो दूंगी तो उससे भी आपको स्किन के इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। जहाँ तक साइड इफेक्ट्स का ताल्लुक है तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। पानी के साइड इफेक्ट्स हैं, पानी के साइड इफेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें यानी जो एक मेन जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, डिबेट चल रही है आजकल जो पाकिस्तान में बच्चियों के हवाले से खास तौर पे, तो ये कहा जा रहा है कि ये एक साजिश है, या एक यानी एक गलत तरीके से बच्चियों को बांझ करने के लिए यानी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके बारे में तुम क्या कहोगे? यानी जो मैंने मोस्ट ऑफ द जो रिकॉर्डिंग्स या वीडियोस या जो मेरे तक पहुंची हैं उसमें जो मेन पॉइंट है वो यही उठाया गया कि ये बच्चियों को बांझ करने के लिए ये एक तरीका कार अपनाया जा रहा है। तो उस पर तुम्हारा क्या कहना है? अच्छा, ये जो ज़रा वो मैसेजेस मैंने भी सुने हैं, लोगों को जो डर और खदशात हैं वो मैं समझती हूँ, क्योंकि अगर एक मुस्लिम हवाले से सोचे तो दुनिया में इस्लामोफोबिया कॉमन है, और ये एक हकीकत है अनफॉर्चुनेटली, ना सिर्फ के कॉमन है बल्कि फैशनेबल है एक किस्म का। तभी जो यानी अगर यानी पाकिस्तान में जो मुसलमान है वो देखते हैं कि जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है और बाकी दुनिया को परवाह भी नहीं है, तो जाहिर है कोई दुनिया हमारी साइड पे नहीं है, हम दुश्मन हैं, हम अदर हैं, और ये आई थिंक वो वैलिड है, वो फीलिंग वैलिड है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये तुम्हें पता है किधर से लिया गया है? ये जो कोविड वैक्सीन के भी बिल्कुल यही प्रोपेगेंडा था, और वो जो अमेरिका में जो शिद्दत पसंद क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं उधर से ये आया था, ठीक है। सो एक किस्म का उनके भी बिल्कुल यही थे कि ये यानी बांझपन पैदा करने की साजिश है, और फिर वो उधर से बारो करके कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे भी डर होता है, जहाँ पे भी खौफ होता है, उसका फायदा उठाया जा सकता है। मुझे भी कोई ये बताए कि इससे बांझपन हो सकता है मेरी बच्ची में, तो मैं भी वो चीज ना देना चाहूंगी, लेकिन प्लीज किसी ऐसे रिसोर्स से इंफॉर्मेशन लें जो रिलायबल है। व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहिए कि डॉक्टर होना भी कोई रिलायबिलिटी की गारंटी नहीं है। जिस तरह बाकी गलती इंसान गलती का पुतला है, और जिस तरह बाकी लोग गलती कर सकते हैं उस तरह बिल्कुल डॉक्टर भी कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स की मालूमात ज्यादा है, कुछ की कम है, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी कितनी
لیکن ایسی انفارمیشن کے لیے ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جن پہ آپ جا کے چیک بذات خود کر سکتے ہو کہ بعض چیک کر لیں. ہاں اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ لوگوں کے خوف ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. جو تم نے کہا نا ڈاکٹرز کا, آج میں نے بلکہ فارورڈ بھی کیا تھا میں نے میسج, ایک گائناکالوجسٹ ہیں جن کا تمہیں میں نے وائس میسج فارورڈ کیا, اور وہ جس طرح کی باتیں وہ کر رہی تھی ایگزیکٹ جو تم نے یہ بات کی کہ بھائی وہ وہاں پہ آ کے ان کی جو ہے وہ میڈیکل کی کوالیفیکیشن بالکل میں سمجھتی ہوں کہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے, کہ کہاں پھر ہم رکھیں کہ آپ کس طرح کی بات کر رہی ہیں. اس وائس میسج میں ذرا میں وہ چلا تو نہیں سکتی اس ویڈیو میں کیونکہ وہ کسی کا وائس میسج ہے, لیکن بات جو کی جا رہی ہے وہ یہ کہ بھئی یہ تو مسلمانوں میں تو ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس حوالے سے ہمارے ہاں تو HPV وائرس تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو یہودیوں میں ہوتا ہے, یہ تو عیسائیوں میں ہوتا ہے, اور یہ ویکسین یہودیوں نے بنائی ہے, اور یہودی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, تو آپ کے لیے آپ کے خلاف یہ سازش ہے. لائک ریئلی مطلب آپ ایک ڈاکٹر ہو کے کتنی بڑی رسپانسبلٹی آپ کے کندھوں پہ, آپ کیا بات کر رہی ہیں. اچھا, تو یہ اس طرح کی باتیں اتنی سننے کو مل رہی ہیں شمع. ہاں اس کو میں ایڈریس کرنا چاہتی ہوں. وہ ویسے میسج تم نے مجھے بھی فارورڈ کیا, وہ میں سن کے بہت محظوظ ہوئی ہوں ویسے, کیونکہ ان خاتون کو ویسے فکشن لکھنا چاہیے, بہت اچھا سائنس فکشن وہ I know. لیکن وہ جو بات کر رہی ہیں وہ بھی نئی بات نہیں ہے. یہ جو چپ ڈال دی ہے, یہ بھی ساری باتیں امریکہ کے تشدد پسند جو عیسائی گروپ ہے ادھر سے, لیکن ظاہر آپ تو دنیا ایک گلوبل ولیج ہے. صرف امریکہ میں نہیں, ہاں ہمارے ہاں, سوری شمع تمہاری بات کرتی ہوں, جب کووڈ کا معاملہ تھا ایون انگلینڈ میں, یہاں پہ کتنے مظاہرے ہوئے اور کتنی اینٹی ویکسینیشن جو ایک وہ کیمپین چلی, اور بہت سارے لوگوں نے نہیں وہ میں سمجھتی ہوں, ہاں وہ میں سمجھتی ہوں, اس کی وجوہات جو ہے وہ کمپلیکس ہے, سمجھتی ہوں. لیکن یہ جو چپ وغیرہ کا مسئلہ ہے, یہ تو آئی وش کہ ایک دن ٹیکنالوجی اتنی اچھی ہو جائے کہ آپ کے اندر چپ ڈال دو اور پتہ چل جائے کہ آپ کدھر ہیں. لیکن یہ ابھی اس وقت وہ صرف خلائی باتیں ہیں. اس وقت وہ ٹیکنالوجی. دوسری جو مزے کی بات شبہ, یعنی میں کس چیز پہ محظوظ ہوتی ہوں, یعنی جب یہ طرح کی بات ہوتی ہے میں کہتی ہوں یار مطلب یہ ہم اپنے آپ میں کس زوم میں ہم پاکستانی, یعنی ہمارے پاس ایسی کیا ٹیکنالوجیز ہیں, یا ہم نے کیا کچھ ترقی کر لی ہے کہ ویسٹ ہمارے پیچھے پڑ گیا ایک بندے کو چپ کرو اور ان کے جو ہے وہ ٹریسز رکھو کہ یہ کیا کریں, کیا سوچ رہے ہیں. حد ہو گئی ہے. یعنی مطلب تم تو کہہ رہی نا کہ تم ہنسی ہو, میں تو ہنس کے ہنسے یا روئے کیا کریں. دیکھو پاکستان ایک طرف یہ حال ہے کہ بجلی آتی نہیں ہے, یعنی ویکسین سب لوگوں کو دے نہیں سکتے کیونکہ فریج نہیں چلتے, اور دوسری طرف ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانسڈ ہے کہ چپس ڈال دی ہوئی ہیں ہم نے, اور ہمیں چپ ڈل جائے گی. اور ہاں لیکن وہ تو چلو مذاق کی بات ہے, ہم نے ایجادات کر لی ہوئی ہیں کہ ہاں وہ ہم سے چرا لی جائیں گی, اور ہمارے جو ہیں وہ مطلب ٹریسز ان کو چاہیے. شمع آن سیریس نوٹ کہ ہم ذرا اس پہ بات کر رہے ہیں سرویکل کینسر کی, جس میں بات کی کہ اس کو یعنی کرنے کے لیے جب یہ ویکسینیشن رول آؤٹ ہو رہی ہے, تو ہم میرا خیال اس پہ بھی بات کریں کہ کیا فیکٹرز ہیں. ایک تو مین فیکٹر جو ہے وہ HPV ہے سرویکل کینسر کا. ایک تو ہمیں بتاؤ کہ اس سرویکل کینسر کے فیکٹرز کیا ہیں مین, اور اس وائرس کے جو ہیں وہ فیکٹرز کیا ہیں, یہ بھی تھوڑا ہمیں سب سے پہلے جو کینسر ہے, کینسر مجھے جب میں میڈیکل اسکول میں تھی ایک لیکچر نے کہا تھا کہ کینسر ایک انیویٹیبلٹی ہے, یعنی وہ ایک حقیقت ہے. ہر کسی کو کینسر ہوگا if we live long enough, کیونکہ ہماری جو باڈی میں جتنے بھی سیلز ہیں, اب میری جو جلد کے سیل ہیں وہ ہائیلی اسپیشلائزڈ ہیں, ہر وقت ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. آخر ایک وقت آئے گا ان سیلز کی ڈویژن میں کہ کچھ نہ کچھ غلطی ہوگی, اور جتنے زیادہ وہ ریپڈلی ڈیوائڈ ہو رہے ہیں اتنا زیادہ اس غلطی کے چانسز ہیں, اور ادھر وہ ایک قسم کی ڈسپلیزیا ہو سکتا ہے. ڈسپلیزیا کہ وہ سیل جو ہے نا وہ اپنی لائن چھوڑ کے ایک اور لائن میں چلے جاتے ہیں, جو جس سے کینسر پیدا ہوتا ہے. اچھا, لیکن وہ میں ادھر بیٹھی ہوں, تم ادھر بیٹھی ہوں, یہ ہمارے جسم میں یہ پروسیس چل رہا ہے. اس وقت میرے بیٹھے ہوئے کئی ایسی سیل لائنس ہوں گی جن میں یہ پوٹینشیل ہیں کہ وہ کینسر بن سکے, لیکن وہ کینسر بنتے ہیں یا نہیں بنتے, اس کو وہ that's the $1 million question. کچھ لوگوں میں وہ جو پری ڈسپوزیشن ہے وہ کینسر بن جاتی ہے, کچھ میں نہیں بنتی. اور آج کل جو ہے وہ کینسر ینگ کم سے کم عمر لوگوں میں آتا جا رہا ہے. جہاں تک سروائکل کینسر کا تعلق ہے, اس میں
किस लिए होता है कि सर्विक्स लैटिन में कहते हैं गर्दन को, तो इसीलिए जो आपकी गर्दन के अंदर जो वर्टिब्रे होते हैं वो सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं, उनको सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं। तो जो सर्विक्स जो यूट्रस में होता है वो यूट्रस की गर्दन है, उसमें दो मुख्तलिफ किस्म के सेल की ट्रांजिशन होती है, और वो जो ट्रांजिशन जोन है ना वो हाई रिस्क एरिया है, इसलिए क्योंकि उसमें सेल बहुत जल्दी से डिवाइड हो रहे हैं। HPV वायरस जो बहुत कॉमन है, जो कि इतना कॉमन है कि जिस तरह जुकाम का वायरस है ना उस तरह का कॉमन है, और वो मोस्ट लोगों में मौजूद होता है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपके अंदर HPV वायरस है उसका मतलब ये नहीं कि आपको कैंसर होगा। कुछ HPV वायरस की इकसाम जैसे 16-18 वो अगर उस ट्रांजिशन जोन के सेल्स के अंदर चली जाए ना, तो उन सेल्स को इनकरेज करती है कि अपने ना यानी उनको राय रास से बहका देते। अच्छा, लेकिन जो फर्ज करो वो बन भी गया है, एक किस्म के सेल बन भी गए हैं, उसका भी मतलब नहीं है कि ये कैंसर बनेगा। उनमें से भी कुछ खवातीन ऐसी होंगी जिनमें वो होगा लेकिन उनको कैंसर नहीं होगा, लेकिन कुछ खवातीन ऐसी होंगी जिनमें वो डिस्प्लेजिया वो है वो कैंसर में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। सो HPV तकरीबन, अब ये नहीं कि सर्विकल कैंसर होने के लिए HPV जरूरी है, लेकिन ज्यादातर केसेस में HPV उसकी मेन फैक्टर वो है, मेन फैक्टर हाँ, ये तो मेन फैक्टर है शम्मा, यानी HPV सर्विकल कैंसर का। जो बाकी इसके अलावा यानी क्या यानी इसके यहाँ और HPV, एक तो तुमने कहा कि ये वायरस इट इज लाइक अ फ्लू वायरस, वो है और इतना कॉमन है। हाँ। तो इसके पीछे भी क्या कोई वजूहात हैं, ये कैसे पैदा होता है और क्या यानी इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड वायरसेस का ये है कि वायरस और बैक्टीरिया और इंसान एक किस्म की लव हेट रिलेशनशिप में है क्योंकि हमारे जिस्म पे इस वक्त भी हजारों लाखों मिलियंस बैक्टीरिया और वायरसेस मौजूद हैं, और वो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो वायरस मेरे जिस्म में और मौजूद नहीं होंगे तो मेरे इम्यून सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि कैसे फाइट करना है उनको। तो ज्यादातर वायरसेस बैक्टीरिया जो है, एक तो कुछ तो मदद भी करते, बैक्टीरिया गट बैक्टीरिया जो है वो बहुत मददगार भी साबित होते हैं हमारे। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो बीमारी पैदा करते हैं, लेकिन ज्यादातर वो इंसानी जो इम्यून सिस्टम है वो उसका मुकाबला करने की सिक्कत रखता है। हम सिर्फ सुनते उन वायरसेस के बारे में ही है जो इस हद तक बीमारी पैदा करते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर सकता। जैसे कि HIV का बारे में तुमने सुना होगा, जिसे एड्स कहते थे, जो कि उसको HPV से कंपेयर करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो बिल्कुल दो मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस हैं, डिफरेंट चीजें हैं। हाँ। और जहाँ तक मैंने ये भी सुना है कि यानी हमारी मुसलमान सोसाइटी है तो हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं है, क्योंकि आई थिंक यू शुड रीड द स्टैटिस्टिक्स कि क्या स्टैटिस्टिक्स है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कंडीशंस की पाकिस्तान में, और उसके लिए कोई आपका कोई नाजायज या गलत किस्म का बिहेवियर जरूरी नहीं है। जायज ताल्लुकात में, बल्कि ज्यादातर है ही जायज ताल्लुकात में ये जो ट्रांसमिशन हो रही है जो मियाँ बीवी के रिश्ते से। और एक बात में ट्रांसमिशन का जिस तरह की HIV की ट्रांसमिशन थी वो बिल्कुल अलग है इससे। HIV डिफरेंट है, हाँ, ब्लड बोर्न वायरस है, ब्लड के जरिए ट्रांसमिट होने वाला। और वो जो सर्कमसिजन वाली बात तुमने की कि वो मुसलमान क्योंकि सर्कमसिजन करवाते हैं और उनमें कम HIV ट्रांसमिट होता है, वो बात बिल्कुल ठीक है कि जो ब्लड बोर्न वायरसेस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, वो कम, उनका खदशा कम हो जाता है अगर आपकी सर्कमसिजन हुई हो। और सर्कमसिजन सिर्फ मुसलमान नहीं, जूस भी करवाते हैं। मुसलमान और जू ये दो मज़ाहिब ऐसे हैं जो उस पर यकीन रखते हैं। और सर्कमसिजन का फ़ायदा मर्दों को होता है, ख़वातीन को नहीं। उनमें ट्रांसमिशन कम होती है, ख़वातीन में नहीं। जो HPV वायरस है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो ज्यादातर ख़वातीन को अफेक्ट करता है। वो लोग मिक्स कर रहे हैं ना दोनों कॉन्सेप्ट्स को, HIV और HPV को मिक्स करके, तो वो दोनों को यानी उस तरह मिला के जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और तो बात समझने की ये है कि HPV में कोई शर्म वाली बात नहीं है,
अगर आपको कभी जुकाम हुआ है तो आपको HPV भी हो सकता है, तो अगर आपको उस पर जितना शर्म आपको जुकाम होने पे उतनी होनी चाहिए आपको जुकाम की वजह HPV से होने पे भी। HPV होना चाहिए। हाँ, चलो थैंक यू सो मच शमा इतनी डिटेल से समझाने के लिए कि वायरस किस तरीके से काम करता है और एचपी वायरस जो है वो क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस सारी गुफ्तगू का इस हासिल गुफ्तगू यही है कि ये बिल्कुल सेफ़ वैक्सीन है और ये एक ज़रूरी वैक्सीन है, ये करवाएँ क्योंकि जो इस कैंसर का ख़तरा पाकिस्तान में बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए बढ़ रहा है, तो उससे बचने के लिए वैक्सीनेशन वक़्त की ज़रूरत है। ये कोई इसराइल की साज़िश नहीं है, कोई मग़रिब की साज़िश नहीं है, कोई ग्रेटर इसराइल नहीं बनने जा रहा, कोई आपके अंदर नैनो चिप्स जो हैं वो इंस्टॉल नहीं करने जा रहा। अगर उन्होंने ये जो चिप्स इंस्टॉल करनी होती तो बहुत और तरीके मार्केट में मौजूद हैं। अगर उन्होंने आपके अंदर आपकी बच्चियों को बांझ करना होता तो आप जो टॉफ़ियों की तरह और कैंडीज़ की तरह रोज़ आप पैरासिटामोल खाते हैं तो उसके अंदर भी यानी इस तरह की चीज़ें डाली जा सकती हैं, जो आप पेन किलर्स आप फाँक रहे होते हैं पाकिस्तान में। उसमें डाल के वो आपकी बच्चियों को बाँझ कर देंगे। कोई ऐसा ये नहीं ये सोच के कि बच्चियाँ बाँझ हो जाएँगी, जैसे पोलियो वैक्सीनेशन के लिए भी यही आज तक पाकिस्तान में हम क्यों इसमें हमें कामयाबी नहीं हुई कि यही एजेंडा चल रहा है, सॉरी यही प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हमारे बच्चों को बाँझ करने के लिए यानी ये वैक्सीन है। वही जैसे शमा ने बात की कि जब कोविड आया तो उसमें भी फिर यही बात हमें सुनने को मिली। अब एचपीवी के लिए भी ये बात सुनने को मिल रही है, तो जो बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपनी रिसर्च खुद करें और मुख्तलिफ एक डॉक्टर की बात आप बेशक ना सुने, आप हमारी बात ना सुने, आप 2-4 और लोगों को भी कंसल्ट करें, पढ़े लिखे लोगों को, और फिर अपना फैसला खुद करें। कोई आज का दौर तो वो है नहीं कि इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी मुश्किल हो जाएगी। फिंगर टिप्स पे इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो प्रोपेगेंडा से बचें और इन्फॉर्मेशन पे यकीन हाँ, करें। शमा, तुम ए, कुछ कहना एक चाह रही एक मैं थी? बात कहना चाहती हूँ कि अगर कोई मगरब की साजिश है तो ये अफवाहें मगरब की साजिश है, क्योंकि ये चिप्स वाली बातें किधर से आई हैं? ये सब मगरब से आई हैं। हाँ, बांझपन की मगरिब बात, की हैं, हाँ, ये जो चिप नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी अफवाहें ये मगरब से निकली हैं और अब जिनी आग मगरिब की से। तरफ फैल गई हैं। जहां तक वैक्सीन का ताल्लुक है, हुँ, मेरा ख्याल है अगर कोई जन्नत का हकदार है तो वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, क्योंकि वैक्सिनेशंस में, हाँ, मिलियंस, बिल्कुल। यानी इंसानियत को बचाया है वैक्सीन ने, मिलियंस ऑफ मिलियंस। हाँ, तो मैं तो वैसे शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान में इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं हैरान हुई, हुँ, क्योंकि वो वैक्सीन, ये तो अभी कल परसों की वैक्सीन है कि ये आई है, और बहुत यहाँ पे शुरू में वो पैसे दे के लगवानी पड़ती थी क्योंकि महंगी थी। अब हुँ, यानी फिर जो सबके लिए फ्री हुई, और जब मैंने सुना कि पाकिस्तान में आई है तो फख्र हुआ कि यानी इतनी जदीद टेक्नोलॉजी और हम हमारे जदीद, जैसे मुल्क में, और हाँ, क्या फ्री फ्री हो रही है पाकिस्तान में, अवेलेबल है। फ्री है या हाँ, हाँ, ये फ्री लगाई वाओ, जा रही है। लाइक हाँ, हाँ, फ्री जेन्युइनली, लगाई जा रही है। जेन्युइनली आई एम रियली ग्रेटफुल जिन लोगों ने भी इसके हाँ, जो भी इसमें इनिशिएटिव शामिल लिया हैं है वो, वो हमारे शुक्रिया के हाँ, लायक हैं। इससे जितनी दाद के जाने, मुस्तहिक हैं। हाँ, बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो दाद के मुस्तहिक हैं, वो शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। तो प्लीज़ इससे मत डरिए और प्रोपेगेंडा से बचिए। और अपनी बच्चियों को अपनी ख़वातीन को बचाइए और इस वैक्सीनेशन, ये बिल्कुल महफ़ूज़ वैक्सीनेशन है। मेरी आज शम्मा से बात हो रही है, मेरी 1-2 और दोस्त डॉक्टर्स हैं, उनसे भी इस टॉपिक पे बात हुई थी। तो मैंने तो जितने भी डॉक्टर से बात की है, जितने भी लोगों से जो थोड़ा बहुत भी मेडिकल का नॉलेज रखते हैं, वो सब इस बात पे यानी हैरान हो रहे हैं कि लोग इसके खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं। ये तो एक ऐसी, जैसे शम्मा भी बात कर रही हैं, कि ये तो काबिल तहसीन एक जो है वो स्टेप लिया गया है। तो ज़रूर लगवाएँ और प्रोपेगेंडा से बचें। Thank you so much, Amma, for all the information that you have given us today. और मेरा ख़्याल है ये जो प्रोपेगेंडा वीडियोज़ बन रही है ना, इसकी मेन वजह ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। लोग जो है वो बात नहीं करते, अवेयर नहीं करते। यहाँ पे शायद मैं ये भी कहना चाहूँगी जाते-जाते कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई भी इस तरह का इनिशिएटिव लेने से पहले एक प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए, ताकि लोग जो भी क्योंकि अब हमारे यहाँ लोग किस तरीके से काम करते हैं, उनके थॉट प्रोसेस क्या है वो हमें पता है। तो उनको टैकल करने के लिए प्रॉपर तरीके से जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए,
تاکہ کم سے کم پروپیگنڈا کیا جائے. اور جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کچھ تو جیسے جو میں تمہیں ویڈیو بھیجی ہے وہ تو معلوم قسم کے لوگ ہیں, کچھ مشہور لوگ, آج میری ایک ایکٹریس ہیں مشی خان, ان کی ویڈیو جو ہے وہ میری نظر سے گزری اور وہ اس کے خلاف بات کریں. تو جو لوگ جن کو آپ پکڑ سکتے ہیں, جن کے بارے جو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ افواہیں پھیلا رہے ہیں, ان سے باز پرس ہونی چاہیے کہ ایک اتنا خرچ کر کے, اتنی فنڈنگ کر کے, ایک عوام کی بہتری کے لیے اور ان کی صحت کے لیے اگر کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے تو اس کے خلاف بات کرنے سے لوگوں کو روکا جائے. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. شمع, تمہارا بہت شکریہ ٹائم کے لیے. انشاءاللہ اگین کسی اچھے وقت اچھے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. آج کی گفتگو سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بائے.